Hello guys and welcome back to Turing Train. So today we are going to discuss about the geometric representation of complex numbers as vectors. So in 11th and 12th standard you have studied the topic of vectors and you have also studied how to add and subtract two vectors. In this video we are going to study how complex numbers can also be treated as vectors. Let us start. Any point x, y in Cartesian coordinate system can be expressed as vectors, which we have studied in the 12th standard. Similarly, any point x, y in Argand plane, which is representing x plus iota y. So basically any point x, y in this Argand plane is going to represent the complex number x plus iota y. We have discussed this in the previous videos. So since x, y in Cartesian coordinate can represent vector, similarly x, y in Argand plane is also used to represent a vector. Now how do we represent it? Let us have a look. So let's say that we are going to have this z vector as z1 plus z2. Right? So we have z vector as z1 vector plus z2 vector, where z1 and z2 both are vectors and basically both are complex numbers. So let z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2. Now when I have to plot this on the Argand plane, जब मुझे इन दोनों complex numbers को Argand plane पे plot करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? Let us first plot z1. z1 का real part क्या है? x1. So we'll plot x1 on the real axis. This is the real axis and this vertical axis is the imaginary axis. So first I plot x1 on the real axis. Similarly for z1, the imaginary part is y1. Therefore I will plot y1 on the imaginary axis. So x1 on the real axis, y1 on the imaginary axis. I will get this point x1, y1. So this point x1, y1 is going to represent my complex number z1 is equal to x1 plus iota y1. Now how are we going to get a vector out of this? Vector तब मिलेगा जब मैं origin से इस point को connect करते हुए एक arrow बनाऊंगा. So this arrow will be called as z1 vector. z1 vector इसीलिए क्योंकि ये जो point z1 है, it is representing the points x1 and y1. x1 और y1 is basically complex number x1 plus iota y1. Similarly, let us now plot z2 as x2 plus iota y2. So मैंने x2 लिया रियल एक्सिस पे एंड मैंने y2 लिया इमेजिनरी एक्सिस पे. दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे ये पॉइंट मिला विच इज x2, y2. ओके, तो अब ये जो पॉइंट है x2, y2 इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z2 बिकॉज z2 इज व्हाट x2 प्लस iota y2. तो अब इसका वेक्टर कैसे मिलेगा? मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक एरो बना देता हूं. So this arrow is going to represent my z1 vector and this arrow is going to represent my z2 vector. So basically what we have done is we have treated this complex number z1 and this complex number z2 as vectors. Now what we are going to do is find another vector z vector which is equal to z1 vector plus z2 vector. So basically we are adding these two complex number in forms of vector. तो इन दोनों को ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं? ये मेरा फर्स्ट वेक्टर, ये मेरा सेकंड वेक्टर. आई विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम और जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स. सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज दिस वाज माय z1 वेक्टर, this was my z1 vector and this was my z2 vector. Now what I did was I completed the parallelogram and जो diagonal बना that will be representing my z vector is equal to z1 vector plus z2 vector. So this is how we are going to add two complex numbers by treating them as vectors. Right. So now let us see the subtraction of two complex number by treating them as vectors. So let's say मेरे पास जो z1 vector है that is x1 plus iota y1. Let me plot this. z1 is x1 plus iota y1. So let us say this is x1 and this distance is y1. Okay, so x1, y1 and the corresponding point x1, y1 is going to give me this vector z1 vector. Now similarly, let me assume that I have this z2 vector as x2 plus iota y2. So this part is x2 and this point is y2. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे पॉइंट मिला x2, y2 और जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा z2 वेक्टर. अब मुझे क्या करना है? I have to find a vector z which is equal to z1 vector minus z2 vector. So basically मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स. तो z1 वेक्टर माइनस z2 वेक्टर कैसे निकालते हैं?
z1 vector minus z2 vector will be z1 vector plus minus of z2 vector, right? Because plus into minus is going to give me minus only. तो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, z1 वेक्टर एंड माइनस z2 वेक्टर को ऐड करना है. अच्छा, z2 वेक्टर तो मेरा ये वेक्टर था, तो माइनस z2 वेक्टर क्या होगा, माइनस z2 वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ z2 वेक्टर एंड हैज द सेम मैग्नीट्यूड. मतलब क्या, अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है z, ओके, लेट्स से दिस इज z वेक्टर, तो मुझे माइनस z वेक्टर कैसे मिलेगा, मैं इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वेक्टर ले लूंगा सेम मैग्नीट्यूड का, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड रिमेन सेम. ओके, तो लेट्स से दिस वाज माय z2 वेक्टर, ठीक है, तो उसका अगर मैं माइनस z2 वेक्टर लेता हूं तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलेगा. सो दिस वेक्टर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट माय माइनस z2 वेक्टर. नाउ बेसिकली मुझे क्या करना है, z1 वेक्टर एंड माइनस z2 वेक्टर को ऐड करना है. सो माय z1 वेक्टर वाज हियर, माय माइनस z2 वेक्टर वाज हियर. जब मैंने पैरेललोग्राम ज्वाइन किया तो मुझे ये पैरेललोग्राम मिला. Now the diagonal is going to represent the addition of the vectors. तो basically z1 वेक्टर माइनस z2 वेक्टर क्या मिला मुझे, ये मिला. ठीक है, तो बेसिकली एक बार वापस रिपीट करते हैं अपन ने क्या किया. दिस वाज माय z1 वेक्टर, राइट, एंड दिस वाज माय z2 वेक्टर. मुझे चाहिए था z1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ z2 वेक्टर, तो मैंने यहाँ पे ऐसे माइनस z2 वेक्टर लिया. नाउ आई हैव टू ऐड दिस z1 वेक्टर एंड माइनस z2 वेक्टर को ऐड करना है. तो मैंने यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया एंड दिस डायगोनल इज गोइंग टू गिव मी z1 वेक्टर प्लस ऑफ minus z2 vector, that is z1 vector minus z2 vector. So basically this is how we subtract two complex numbers by representing them in the form of vectors. So कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने 12th स्टैंडर्ड में वेक्टर्स पढ़ा है बिल्कुल इसी तरह अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है, राइट. एंड एक थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जो कॉन्जुगेट है उसको एज अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, देन इट्स कॉन्जुगेट z बार विल बिकम x माइनस आयोटा वाई. सो नाउ लेट अस प्लॉट दीज टू. ये है मेरा रियल एक्सिस एंड दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस. सो लेट मी फर्स्ट प्लॉट z वेक्टर. तो z वेक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, राइट. तो मैंने पहले x प्लॉट किया एंड y प्लॉट किया. ओरिजिन से जब मैं इस पॉइंट x, y को कनेक्ट करूंगा तो मुझे मेरा z वेक्टर मिल जाएगा. लेट्स से दैट दिस z वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रियल एक्सिस. अब इमेजिनरी ये जो कॉन्जुगेट मिला है मुझे वो क्या है, x माइनस आयोटा वाई. तो वो कैसे मिलेगा, रियल पार्ट तो सेम है x, बट इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे z का y था तो z बार का माइनस y हो गया. सो व्हेन आई कंसिडर द पॉइंट x comma minus y, I'll get this point. This point was x comma y. This point is x comma minus y. तो अब मुझे अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा. सो I'll get this vector. So if you see z vector and z bar vector, ठीक है, that is the reason I am representing the vector with an arrow, क्योंकि ये z bar और अगर मैं वेक्टर को सीधा लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो वो कॉन्जुगेट से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है रिकॉग्नाइज करने में. दैट इज द रीजन आई एम रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर एज एरोस. तो ये क्या है, z बार वेक्टर. बेसिकली ये जो z वेक्टर था उसका कॉन्जुगेट वेक्टर है, राइट. तो वो अगर आप नोटिस करोगे तो ये बात हम कॉन्जुगेट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो z वेक्टर है एंड z बार वेक्टर है, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ठीक है, अगर मैं इस लाइन को मिरर कंसिडर करता हूं तो दिस z वेक्टर एंड z बार वेक्टर आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. उनकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है, बस जो एंगल है एंगल भी सेम रहता है, बट सिंस वी आर मेजरिंग दिस एज पॉजिटिव एंड वी आर मेजरिंग दिस एज नेगेटिव एंगल. तो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z बार विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेक्टर z विच विल बी दिस एंगल थीटा इज नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार. ठीक है, z बार का आर्ग्यूमेंट क्या था, माइनस थीटा. सो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसका आर्ग्यूमेंट था माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा मिला. दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ट्रू. मतलब क्या है सिंपल स्टोरी का, कि जो z वेक्टर है उसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट वेक्टर. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर. एंड अपन ने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर भी देखा एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर देखा, एंड ऑल्सो वी स्टडीड कि जो कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल
एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, वहां पे मेरा email ID and there is my WhatsApp number where you can send direct doubts to me. And if you got any doubts in any particular video, please mention your doubts in the comment section. Right? Thank you so much for watching.